Hello friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel American English Academy. Friends, questions based on error detection are commonly asked in most of the competitive exams. So, in this video session we shall discuss how to find out errors in a sentence. Let's discuss the questions one by one. First question is, his car is more bigger than that any of us. While finding out the errors, we have to see each part of the sentence. Let's see the first part. His car is. The sentence is in present affirmative, present indefinite और you can say simple present है. ये पहला जो है simple present tense में है, यानी ये correct है. आगे है more bigger than. More bigger. So there is an error, students. What is the error? You know very well that comparative degree of big is bigger. Big की comparative degree bigger होती है और comparative degree से पहले कभी भी more का use नहीं कर सकते. We cannot use more before comparative degree. So this answer is, so there is an error. It should be his car is bigger than that any of us. So answer number B is correct. Answer number B is 100% correct. Let's discuss question number 2. One of my uncles are a doctor in America. Students, whenever you are given the subject in the form of a phrase, you should always, while adding a verb to such a subject, you should always pay attention to the head word of the subject. जब भी आपको सब्जेक्ट एक फ्रेज की फॉर्म में दे रखा हो, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि ये दे रखा है आपको वन ऑफ माई अंकल्स, तो यहाँ पर हेयर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अंकल्स, हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन. हेयर हेड वर्ड इज वन, यानी मेरे चाचाओं में से एक. और जब एक की बात कर रहे हैं, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन, हाउ कैन इट बी आर? तो ये आर कैसे हो सकता है? तो आर इज इनकरेक्ट टर्म हेयर, it should be is. So the correct answer of this question is, one of my uncles is a doctor in America. So option number B is the correct answer here. Let's discuss question number 3. He don't know the difference between a ship and a submarine. Let's see. He don't. You know very well, students, that the first option of question number 3 is given in present indefinite negative. And you know that with affirmative, I mean to say with singular subjects, we always use does while we are given don't here, which is 100% incorrect. जो सेंटेंस हमें दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, वो भी नेगेटिव है. और प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में हम डज नॉट और डू नॉट का यूज़ करते हैं. डज नॉट यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही के साथ डजंट लगाना होगा हमें, डजंट, और यू कैन से डज नॉट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज he doesn't know the difference between a ship and a submarine. So option number A is correct. Let's discuss question number 4. Yesterday I met an old friend when I am going to the market. When I am going to the market. देखते हैं पहला सेंटेंस पहला पार्ट देखते हैं सेंटेंस का. Yesterday I met an old friend. कल मैं अपने एक पुराने मित्र से मिला, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो अगला भी पास्ट में ही होगा. There is a rule, students, when the first clause is given to us in past tense, other should also be written or expressed in past. So when I am going to ये हो जाएगा जब मैं जा रहा हूँ, जबकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट पास्ट, जबकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होना चाहिए? एम के प्लेस पर वॉज होना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा ये. व्हेन आई वॉज गोइंग टू मार्केट, कल मैं अपने पुराने दोस्त से मिला जब मैं बाजार जा रहा था. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. No sooner we entered than he got up and left the room.
Students, whenever you solve the sentences related to no sooner, they are always solved in two patterns. No sooner से related जब भी sentence आप solve करें तो ये जो sentence होंगे दो पैटर्न से solve होंगे. हमेशा no sooner के बाद पहले वाले पैटर्न में did होगा, then subject, subject के बाद after the subject first form of verb. सेकेंड पैटर्न में सब्जेक्ट होगा नो सूनर के बाद, देन हैड HAD, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ यू हैव टू सी दैट. अब आपको देखना है कि पहला वाला पैटर्न तो यहाँ अप्लाई हो ही नहीं रहा है क्योंकि डिड नहीं दे रखा है. तो अब हम कौन सा पैटर्न, विच पैटर्न इज टू बी यूज्ड हियर? वी हैव टू यूज सेकंड पैटर्न. नो सूनर सब्जेक्ट इज वी. अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी है. वी सब्जेक्ट है. देखिए लेट्स सी, वी सब्जेक्ट है. अब थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, यानी यहाँ पर कुछ मिसिंग है, हैड नहीं दे रखा है. वी हैड एंटर्ड. नो सूनर वी हैड एंटर्ड, देन ही गॉट अप. ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर द क्लॉज रिलेटेड टू नो सूनर द नेक्स्ट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट्स विद देन, THAN. और ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है बी. एंड सी इज ऑल्सो करेक्ट. एंड लेफ्ट धर्मोस ने कमरा छोड़ दिया. So where is the error? We had entered. So there is an error in option number A of question number 5. So option number A is correct. We had entered. Let's discuss question number 6. The new railway line will greatly improve the transport and communication in eastern part of the country. The new railway line, जो नई रेलवे लाइन है, will greatly improve, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से सुधार करेगी. किसमें सुधार करेगी? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम में. कहाँ पर? इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. स्टूडेंट्स, there was no error in option number A and B, but there is an error in option number C. What is the error? You know very well that the words related to directions are always preceded by definite article the. आप जानते हैं कि जितने भी वर्ड्स डायरेक्शन से रिलेटेड हैं उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है. तो व्हाट इज द एरर हियर स्टूडेंट्स? देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर सी, इन द ईस्टर्न. इन द ईस्टर्न. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न, द साउदर्न, लाइक दैट. थैंक्स. नेक्स्ट इज 7. Number 7. The receptionist asked me, who do I want to meet in the office? The receptionist asked me. Receptionist ने मुझसे पूछा. अब ये indirect narration की फॉर्म में दे रखा है. और you know very well students that said to is changed into asked in indirect speech. ये जो asked दे रखा है, ये said to direct में था, indirect में asked कर दिया है. And there is a rule that in indirect narration reported speech is changed into affirmative sentence. अब indirect narration में reported speech affirmative narration में change कर दिया थी, यानी ये आगे का जितना भी पार्ट है सब affirmative में change कर दिया जाएगा. And you know that for combining two clauses we need a conjunction. और दो clauses को जोड़ने के लिए conjunction ही दे रखा है जो कि यहाँ पर who हो जाएगा. लेकिन who नहीं लगा सकते. We cannot use who here. Why so? We cannot use it because right after who is always followed by a verb. Who नहीं लगा सकते क्योंकि who के बाद तो हमेशा verb आती है. तो who का क्या लगाएंगे? who का ऑब्जेक्टिव केस होता है whom, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म. प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा. whom हो जाएगा. who का whom, सब्जेक्ट I, देन प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म वांटेड. whom I wanted. whom I wanted. So option number B is correct here. The receptionist asked me whom I wanted to meet in the office. Let's discuss question number 8. The criminal was sentenced to death and was hung for his crime. Students, the sentence is given to us in passive voice, past indefinite tense. Option number A is correct. The sentence, criminal was sentenced to death, यानी उसे मौत की सजा, मृत्युदंड दिया गया. C है and was hung for his crime. Always remember that
there is a difference between hang and hung. Hang, there are two ways of writing the verbs of hang. Hang, hung, hung. H-U-N-G. पहला हैंग जो है, दूसरा हैंग है H-A-N-G. सेकंड में हैंग्ड हो जाएगा और थर्ड भी हैंग्ड हो जाएगी. देयर इज अ डिफरेंस स्टूडेंट्स. पहला जो हैंग है H-A-N-G, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म H-U-N-G हो जाती है. अब इन दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या है इनमें? पहला हैंग जो है वो स्वयं लटकना होता है, स्वयं कोई फांसी लगा लेता. आप जानते हैं, आप व्हेन समबडी इज सेंटेंस्ड टू डेथ, ही डज नॉट हैंग हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को खुद फांसी नहीं लगाता, जबकि कोई अदर पर्सन उसको फांसी लगाता है. तो पैसिव वॉइस में हमेशा हंग नहीं यूज होगी, हैंग्ड यूज होगी. दूसरा वाला हैंग जो है H-A-N-G और ये हैंग्ड H-A-N-G-E-D, ये इसका मतलब होता है फांसी लगाना, फांसी देना, फांसी देना. तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा स्टूडेंट्स? यहाँ हंग के प्लेस, H-U-N-G के प्लेस पर H-A-N-G-E-D, यानी उसको मृत्यु दंड दिया गया. ये करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Let's discuss question number 9. He said that he will help me secure a decent job. Students, this sentence is also related to indirect narration or indirect speech. Indirect narration से related sentence है, and there is a rule in indirect speech, students. If first clause is in past tense, देखिए, you can see that first clause of in indirect speech is given indirect speech is in past tense. यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म पास्ट में दे रखी है, तो इसका रूल ये होता है, तो अगली जो क्लॉज होगी वो भी पास्ट में ही लिखी या बोली जाएगी. तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही विल हेल्प मी, मेरी मदद करेगा. तो यहाँ विल नहीं चलेगा, अब हमें विल का पास्ट टेंस लगाना होगा. विल का पास्ट क्या होगा? वुड. W-O-U-L-D, वुड. तो करेक्ट आंसर है ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, क्योंकि जब पहली पास्ट में है तो दूसरी क्लॉज भी पास्ट में लिखी जाएगी, और विल का पास्ट वुड होता है. ही वुड हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th एंड लास्ट. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग. यानी गांव वाले पानी को, फ्लोर वाटर को ऊपर उठता हुआ देखकर भाग गए. अब कहाँ एरर है देखते हैं. लेट्स सी. द विलेजर्स फ्लेड अवे. देखिए बेटे स्टूडेंट्स, फ्लेड मीन्स रन अवे, रन अवे. तो द वर्ड फ्ली, फ्ली इज द फर्स्ट फॉर्म, फ्ली, FLEE. फ्ली फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लेड होती है. ये पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए फ्लेड दे रखा है. अब फ्लेड का ऑलरेडी मीन होता है रन अवे, कहीं से भाग जाना, तो फिर यहाँ अवे की जरूरत नहीं है, बिकॉज द वर्ड फ्ली और फ्लेड ऑलरेडी कंटेन्स द वर्ड अवे. क्योंकि फ्ली, फ्लेड, फ्लेड में अवे ऑलरेडी रन अवे जुड़ा होता है, तो यहाँ पर अवे अनावश्यक है, अननेसेसरीली यूज किया गया है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस वीडियो स्टूडेंट्स. You should express your opinions whether you like this video or not, or what kind of improvement should be there for the next time. Please like and share the video and subscribe my channel American English Academy. Thanks for watching this video. Bye bye, take care, we shall meet in next video.